علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے چینل ندوی ٹائمز میں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں تک ہمارا یہ نیا چینل پہنچ چکا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ فٹافٹ بہت جلد آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن، وہ جو گھنٹی کا نشان آتا ہے، اس کو بھی آپ پریس کر دیجئے، دبا دیجئے، تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ہمارے پرانے چینل کو یوٹیوب نے بین کیا، کوئی بات نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، گھبرانے والے نہیں، بلکہ ہم ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف بولتے رہیں گے۔ اس نئے چینل پر آپ آ جائیے، ملک کی اور دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں سنتے رہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت ریاست منی پور سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، منی پور میں وہ منی پور جو تقریباً 3 سال سے جل رہا ہے، میرے اپنے ملک کا اٹوٹ حصہ اور اٹوٹ انگ ہے، مگر کیا کریں، بھارتی جنتا پارٹی، نریندر مودی پوری دنیا میں گھومنے کا ٹائم ہے۔ میرا خیال دنیا کے 5 چکر ان کے 10 سال میں لگ چکے ہیں، مگر منی پور ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس منی پور میں جو 3 سال سے جل رہا ہے، جہاں تشدد اور ہنسا کا یہ عالم ہے کہ سڑکوں پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو غزہ کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میرے دیش منی پور کی کہانی سنا رہا ہوں۔ گزشتہ کل پھر منی پور میں تشدد پھوٹ پڑا اور 20 سے زیادہ مکانات کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کم جونگ ضلع میں کوکی اور تانگ کھل ناگا دیہات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ تقریباً 20 سے زیادہ مکانات کو پوری طریقے سے جلا کر خاک کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ حملے کوکی اور تانکل ناگا برادریوں کے دیہات کو نشانہ بنا کر کیے گئے ہیں، اور تقریباً یہ حملہ دوپہر 12:30 بجے یعنی دن کے اجالے میں یہ کام ہوا ہے۔ بھارت میانمار بارڈر پر واقع کوکی اکثریتی گاؤں کو نامعلوم افراد نے نظر آتش کر دیا۔ منی پور کی تنظیم نے، سنگٹھن نے، مرکزی حکومت، یعنی یوں سمجھیے کہ ہماری کیندر بے شرم سرکار جو صرف الیکشن کہاں ہے وہاں لگ جاتی ہے کہ کیسے اس کو جیتا جا سکتا ہے، باقی ملک بھاڑ میں جائے، تو اب وہاں کی تنظیم نے ہماری کیندر سرکار کو، وزارت داخلہ یعنی گرہ منترالیہ کو، اور حکومت منی پور اور سیکورٹی اداروں کو یہ اپیل کیا ہے، یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ مزید جانوں اور دیہات کو نقصان پہنچانے سے پہلے کچھ فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں اور منی پور کو بچایا جائے۔ آئیے ناظرین، دوسری اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ اور فلسطین، جی، جو دنیا کے نقشے کی وہ پاک اور مقدس سرزمین ہے جسے نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے، جہاں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں نماز پڑھائی اور مقتدی تمام 1.25 لاکھ انبیاء موجود رہے، صف بنی رہی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز وہاں پر پڑھائی، امامت کی۔ اس پاک سرزمین پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں موجودہ ظلم کے، بمباری کے، بھوک اور خانہ بدوشی کے۔ غزہ بمباری سے تباہ ہو گیا، بھوک کی وجہ سے معصوم بچوں نے جان توڑ دی، دم نکل گیا، اور خانہ بدوشی غزہ کا مقدر بن گئی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر نکل رہے ہیں۔ غزہ کی ایسی داستان جس نے دنیا کے ضمیر کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، وہ دنیا جو امن و امان کی بات کرتی ہے، سیکولرازم کی بات کرتی ہے، اور اتیاچار اور ناانصافی کے خلاف بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، حقوق انسانی کی بات کرتی ہے، یہ جتنے حقوق انسانی کے علمبردار بنتے ہیں، یہ سب جھوٹے مکار غدار غزہ کے اور فلسطین کے معاملے کو لے کر خاموش ہیں، یعنی مجرم ہیں۔
तबाही, नकल मकानी और भूख के 1000 दिन मुकम्मल हो गए, जबकि दुनिया खामोश है और दुनिया की खामोशी पर भी अब सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 टोक फरमान जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 टोक हिदायत और आदेश देते हुए कहा कि तलबा को हिंदू दुआओं पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि मुल्क के कई स्टेट्स में बाकायदा स्कूल की प्रार्थना में, सुबह प्रेयर में मुसलमान तलबा को भी वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार और न जाने कैसे कैसे अल्फाज जो उनके अकीदे, आस्था और धर्म के ख़िलाफ़ है, वो उनसे पढ़वाने की नाजायज़ नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को सलाम कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 टोक अंदाज में ये फरमान जारी कर दिया कि तलबा को, यानी ख़ास तौर से मुस्लिम तलबा को हिंदू दुआओं पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और सिर्फ हाई कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, हाई कोर्ट ने यह भी कहा, अदालत ने यह भी कहा कि अगर इन फ्यूचर मुस्तकबिल में किसी तालिब इल्म को इस तरह की मजहबी सरगर्मी में ज़बरदस्ती शरीक करने की कोशिश की गई तो फिर ये मुतासर फरीक दोबारा अदालत से रुजू कर सकता है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सरकारी स्कूलों में किसी भी तालिब इल्म को हिंदू मजहबी दुआएं या वेदक मंत्र पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामेनी जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, पूरी कहानी आपको मालूम है। अब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही है और ख़बरों के मुताबिक ये खबरें आ रही है कि 3.5 करोड़ लोग इस आखिरी रसूमात के प्रोग्राम्स में जो 3 दिन तक चलेगा उसमें शरीक हो रहे हैं। और बहुत ही बड़े पैमाने पर ईरान सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों का इंतज़ाम किया है। तकरीबन 10,000 स्कूलों को खोल दिया है, मस्जिदों मदरसों को खोल दिया है, बहुत बड़े पैमाने पर पार्किंग का इंतज़ाम है, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी की अलविदाई तकरीब होने वाली है जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। लेकिन अब उसको लेकर यह खबर आ रही है कि आखिरी रसूमात से पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी, खबरदार कर दिया कि खामेनी की अलविदाई तकरीब के दौरान हमले से बाज रहना, अगर कुछ गड़बड़ किया तो याद रखें कि फिर इसका अंजाम बुरा होगा। यानी ईरान हुकूमत ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दे दिया कि कोई बदमाशी और कोई शरारत मत करना वरना अंजाम ख़तरनाक होगा। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक जो है आखिरी रसूमात का आगाज़, आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई को तेहरान से होगा, जिसके बाद वहाँ का मशहूर शहर कुम, इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ और करबला में खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएगी, जबकि 9 जुलाई को आयतुल्लाह खामेनी को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जापान के ज़िम्मेदार और जापान के वज़ीर आज़म हमारे प्यारे मुल्क भारत आए हुए हैं। भारत में उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जी, भारत और जापान के दरमियान अब इक़्तिसादी शराकतदारी होगी, पार्टनरशिप होगी और यूँ समझिए कि जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई और दिफाई मुआहदे पर भी इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की वज़ीर आज़म के दरमियान जुमेरात को होने वाली सालाना सरबराही मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी शराकतदारी के नए फ्रेम वर्क और मुश्तरका दिफाई साजो सामान की तैयारी से मुताल्लिक एक दिफाई मुआहदे का भी ऐलान किया है। वो जो आप
रिबन में लिपटा हुआ बॉक्स देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी यूं समझिए कि वज़ीर आज़म जापान को दे रहे हैं या दोनों ने पकड़े हुए हैं, आप बिल्कुल गलत फहमी में न रहें। वो मेलोडी चॉकलेट नहीं है, वो दिफाई मुआहदे का गोया कि एक एग्रीमेंट का बॉक्स है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, फिल्म स्टार और किंग खान के बाद जिनको बिल्कुल मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है, जिन्होंने अपना रोल अपनी ज़िंदगी में किसी भी फिल्म का रोल बड़े परफेक्ट अंदाज में अदा किया है, और कहते थे कि वो साल 2 साल 5 साल में एक फिल्म बनाते हैं, मगर जो फिल्म बनाते हैं वो सुपर डुपर हिट होती है, इसलिए उनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। मगर क्या करें, आमिर खान अपनी फिल्मों में तो परफेक्ट किरदार अदा करते रहे, मगर ज़िंदगी में वो परफेक्ट नहीं बन पाए, और अब जनाब 60 साल की उम्र के गालिबन हो चुके हैं और अब वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। आमिर खान ने अपनी शादी की तस्दीक कर दी है और 5 जुलाई को वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से निकाह करेंगे। अब वो निकाह होगा या क्या होगा अल्लाह ही जाने, मगर आमिर खान अब 60 साल की उम्र में बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं और अब वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। वैसे भी इन लोगों की शादी कब होती है, कब टूट जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कौन कब किससे मिल जाएगा, किससे अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, किसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, और इन लोगों का कोई दीन धर्म भी नहीं है। ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आइए नाज़रीन, रियासत झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड के धनबाद में, मशहूर जगह है धनबाद, वहाँ धनबाद में 785 मुजरिमों को, जराइम पेशा अफराद को, यानी क्रिमिनल्स को इज्तिमाई परेड कराई गई, यानी उनको सबको एक साथ लेकर परेड करवाया गया। पुलिस ने ये अनोखा कदम उठाया, जुर्म छोड़कर बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की, यानी जराइम पर काबू पाने और अमनो अमान को मज़ीद मुस्तहकम मजबूत बनाने की गरज से झारखंड के ज़िला धनबाद में पुलिस ने एक मुनफरिद कदम के तहत मुख्तलिफ थाना इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 785 शनाख्त शुदा जराइम पेशा अफराद की इज्तिमाई परेड करवाई। इस नौइयत की ये पहली मुहिम बताई जा रही है, जिसका मकसद इन अफराद की शनाख्त की तौसीक़, इनकी मौजूदा सरगर्मियों का जायज़ा लेना और उन्हें मुस्तक़बिल में जराइम से रोकना है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर फारुखाबाद में एक 125 साला तारीख़ी गुरुद्वारा, 100 साल पुराना तारीख़ी गुरुद्वारा पाकिस्तान में, उसे मिस्मार कर दिया गया, गिरा दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया, जिस पर भारत ने सख्त एहतजाज किया है। और भारत की सिख तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत से, यानी हमारी केंद्र सरकार से मुदाखलत का मुतालबा किया है, यानी केंद्र सरकार से सिख तंजीमों ने यह डिमांड किया है कि वो भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बात करे कि ये घटिया काम है, ये अच्छा काम नहीं है, और यकीनन भारत सरकार ने ऐसा करना चाहिए। सिख तंजीमों के हम साथ हैं। सिख तंजीमों का अगर तारीख़ी गुरुद्वारा मिस्मार किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। इसीलिए सिख तंजीमों ने हमारी भाजपा सरकार से कहा है कि वो पाकिस्तान की सरकार से बात करें। लेकिन मैं आपको बता दूं सिख भाइयों को कि भारत सरकार इतनी बदमाश है कि इसी सरकार ने और इसी सरकार में 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी कई मस्जिदों को मिस्मार किया गया, और बिल्कुल गलत अंदाज में, गुंडागर्दी और आतंकवादियों के अंदाज में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। न जाने कितनी मस्जिदों पर बुलडोज़र चला दिए गए। तो ये मक्कार सरकार, अपने मुल्क में मस्जिदों को मिस्मार किया गया और गुंडों ने, आतंकियों ने गिराया, ये सरकार उनको साथ देती रही, तो अब ये सरकार आपके लिए पाकिस्तान से क्या बात करेगी। नाज़रीन, दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके
गुज़िश्ता कल उनकी ज़बरदस्त वीडियो वायरल हुई है जिसमें अभिजीत दिपके एक माइक पर ये कह रहे हैं, जावेद भाई, यानी शायद जावेदी नाम है, किसी मुसलमान से कह रहे हैं, जावेद भाई ये किसान भाई आज हमारे आंदोलन में आए हुए हैं, शेतकरी भाई आए हुए हैं, ये हमारे अन्नदाता है, जावेद भाई इनके भी खाने का इंतज़ाम करो। मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर एक मुस्लिम भाई है जो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों के खाने का इंतज़ाम कर रहा है और लोक सेवा, जनता की सेवा कर रहा है। वो लोग जो सरकार के करप्शन, सरकार की गद्दारी, सरकार की मक्कारी, सरकार की बदमाशी के खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, CJP के बैनर तले, वो जावेद या क्या नाम है, शायद हो सकता मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो मुसलमान जवान जो है हज़ारों लोगों को खाना खिला रहा है। तो अभिजीत दिपके की वो वीडियो वायरल हुई है, लेकिन वहाँ से जंतर मंतर से ये भी खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक, मशहूर नाम है, सरकार ने इसको भी दबाने की कोशिश की, जेल की सलाखों में ठूस दिया, मगर इसका हौसला नहीं टूटा। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं CJP के एहतजाज में और उनकी भूख हड़ताल शुरू है। 5वें रोज़ गुज़िश्ता कल उनकी भूख हड़ताल शुरू थी, लेकिन अब उनकी सेहत, स्वास्थ्य बिगड़ने लगी है। फिर भी मुझे यकीन है कि ये बेशरम सरकार वहाँ नहीं जाएगी और बच्चों के मुस्तकबिल की बात और उनके दर्द को नहीं सुनेगी। इन्होंने सैकड़ों किसानों को मरते देखा, मगर इन्होंने कभी किसानों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस सरकार को हिटलर और तानाशाह सरकार कहा जा रहा है। खुदा करे कि जो अंधभक्त गोबर भक्त है, जो गोबर खा रहे हैं, उनके समझ में आ जाए। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सावरकर के पोते ने खुद पूना अदालत में ये दावा किया, यानी सावरकर के पड़ पोते ने पूना अदालत में ये दावा किया कि सावरकर को जो अंग्रेज़ों ने रिहा किया था, उनकी माफ़ी की दरख्वास्तों, उनकी माफ़ी की अपीलों की बुनियाद पर रिहा नहीं किया था, बल्कि सावरकर की रिहाई सियासी कोशिशों का नतीजा थी, यानी राजनीतिक कोशिशों का नतीजा थी। ऐसा दावा खुद सावरकर के पड़ पोते ने पुणे अदालत में किया, जिससे इतना तो पता चल गया है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और अंग्रेज़ों से रहम की अपील की थी। अदालती कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की जानिब से रहम की दरखास्तों का हवाला दिए जाने पर सावरकर के पड़ पोते ने रज़ाकाराना तौर पर कहा कि उन दरखास्तों की वजह से सावरकर को रिहाई नहीं मिली थी। अदालत ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि गवाह के मुताबिक सावरकर दरखास्तों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 1937 में कौमी असम्बली की सियासी कोशिशों के नतीजे में रिहाई सावरकर को मिली थी और उस वक्त असम्बली कांग्रेस के ज़ेर इंतज़ाम नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि ये मुकदमा राहुल गांधी पर चल रहा है। मार्च 2023 में लंदन में उन्होंने एक तकरीर दी थी, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर सावरकर की तहरीरों का हवाला देते हुए दावा किया था कि सावरकर और उनके साथियों ने एक मुसलमान शख्स पर हमला किया था और इस अमल को खुशगवार करार दिया था। तो ऐसी कई चीज़ें राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी पर मुकदमा हुआ और ये मुकदमा चल रहा है और मुकदमे को लेकर पुणे की अदालत में खुद सावरकर के पड़ पोते ने जो कहा वो आपने सुन लिया।